Yes, friend, today we discuss the torque due to magnetic dipole. जैसे हमने टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है वैसे ही टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल. टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, and in magnetisms we will discuss torque due to magnetic dipole in uniform magnetic field. Uniform magnetic field, the magnetic field lines are equispaced, each and every point the field is same, magnetic field is same, uniform magnetic field. In this uniform magnetic field we place a bar magnet. This one is the bar magnet, this one is S pole, this one is north pole. The magnetic charge minus M, magnetic charge plus M, and the separations 12, and magnetic axis make an angle theta. This is the magnetic dipole. What means magnetic dipole? A pair of equal and opposite poles stand separated by a finite distance. We have already discussed many dipole. A pair of equal and opposite poles stand separated by a finite distance, and magnetic dipole moment M into 12. Okay. Now here uniform magnetic field, and in this field there are two forces are ejected. On the north pole magnetic field we know that force upon pole strength. So now here the force that will is equal to positive MB, and now the here pole strength is negative, so here the force is minus MB. We can say in a uniform magnetic field net translatory force is 0. Net translatory magnetic force is 0. Net translatory magnetic force is 0. But now here we are know that there are two equal and opposite forces are acting on the magnetic dipole. They constitute torque couple to tends to rotate the magnetic dipole in uniform magnetic field. Now here two equal and opposite magnetic force constitute torque, which tends to rotate the dipole, magnetic dipole, in uniform magnetic field. Now torque is what? Now this is the perpendicular distance BL. Suppose this point is SN. Now torque is magnitude of either force into perpendicular distance. Magnitude of either force into perpendicular distance. So torque is equal to magnitude of either force MB, perpendicular distance NL. MB perpendicular distance NL. अब इस डायग्राम में this side upon this side,
NL upon SN sin theta. NL is equal to SN sin theta और SN is equal to what? 2L sin theta. M into 2L sin theta, and we can write M into 2L B sin theta, M into 2L magnetic dipole moment, M B sin theta. यहां पर हमारे पास आ गया टॉर्क एम बी sin theta. When the magnetic dipole is placed in uniform magnetic field, then torque is equal to mb sin theta. mb sin theta. Now, what are the conditions for maximum and minimum torque? The maximum value of torque, that is depend on the value of sin theta, and sin theta maximum value is 1 when theta is 90. When theta is 90, we means that when theta is 90 means magnetic dipole is placed normal to magnetic field. When theta 90 means magnetic dipole is placed normal to the magnetic field. So what are the conditions for maximum torque? For the maximum torque, mb sin of 90. Here theta is 90. Theta 90 means this magnetic dipole is placed right angle, normal to magnetic field, maximum torque, and torque will be maximum, and for a maximum torque mb. For minimum torque for minimum torque means sin की वैल्यू में minimum means theta either 0 or theta either 180, and both values sin theta is equal to 0. For a minimum torque, we can say minimum value of torque, that depends on sin value. Sin minimum value, that will be 0. That means either magnetic dipole is placed parallel to the field or anti-parallel. Theta 0 means this magnetic dipole either parallel to the magnetic field, or theta 180 means that is anti-parallel to the magnetic field, and these are the conditions for minimum torque. For the half maximum, the question can be asked for half maximum. And half maximum theta is what? 45 mean half maximum theta is 30. Why? कि sin की वैल्यू half 30 पे, तो torque will be equal to mb sin of 30, or sin 30, that is the half maximum. So these are the conditions for half maximum, maximum and minimum when a magnetic dipole is placed in uniform magnetic field. And this torque in vector form we can write m vector cross b vector. Torque due to magnetic dipole in uniform magnetic field. And in non-uniform magnetic field, we can't say the translatory force is 0, magnetic force. Now here, work done by torque due to magnetic dipole in uniform magnetic field. Work done by torque due to magnetic dipole in uniform magnetic field. Yeah, we can say magnetic potential energy due to magnetic dipole. In other words, the question can be asked, the magnetic potential energy due to magnetic dipole. Work done by torque, dw torque d theta, torque mb sin theta d theta dw.
यहाँ पे हम ये मानते हैं कि इनिशियली हमारा जो डाइपोल है वो मान लीजिए एंगल थीटा 1 बना रहा है इनिशियल, वी अज्यूम दैट, और थीटा 1 इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, और यहाँ पे हम थीटा 2 लेंगे, दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो एम बी डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डब्ल्यू एम बी साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 माइनस एम बी अपर लिमिट माइनस लोअर cos theta 2 minus cos theta 1, and work done is equal to mb, or that can be written as cos theta 1 minus cos theta 2. This is the general formula of magnetic potential energy due to magnetic dipole. ये आपके पास है magnetic potential energy, magnetic potential energy due to magnetic dipole, magnetic dipole, magnetic potential energy due to magnetic dipole. So now there are the different conditions. The examiner can be asked कि what will be the work done when the dipole is rotate in the same direction to opposite या parallel to anti-parallel. when magnetic dipole is rotate in the same direction to opposite, yeah, in other words we can say in parallel to anti-parallel. When the dipole is rotate in the same directions to opposite, yeah, parallel to anti-parallel. If the dipole is rotate from same direction to opposite, so same direction to opposite means initially theta 1 is what, 0, to theta 2 just opposite, theta 2 is 180 when the magnetic dipole is rotate in the same direction to opposite, and in that conditions we can say the work done mb cos of 0 minus cos of 180 degree and mb cos 0 1 minus 1, or maximum work is done. So there are different conditions. Now in these conditions we have discussed when the dipole is rotate same direction to opposite, so same direction means theta 1 इनिशियली पोजीशन सेम डायरेक्शन में रखा गया है, अलाइंड है, पैरेलल है, अपोजिट, तो थीटा 1 0 to theta 2 is equal to 180. The question can be asked when the dipole is placed normal to the field, initially normal to the field, तो थीटा 1 क्या होगा 90, normal to the field to parallel to the field, तो थीटा 1 90 and theta 2 is what, 0. So now here theta 1 is what, 90 and theta 2 is 0. So there the condition may be any condition. You have to learn the general formula. Theta 1, remember that the initial position of the dipole, theta 2 is after rotating the final position of the dipole. So this is the work done by torque in uniform magnetic field. The unit of magnetic dipole moment may be joule per Tesla. How we can say, name the physical quantity which has the unit. For maximum torque, torque is equal to जैसे mb, torque unit होती है joule, न्यूटन मीटर, and Tesla. तो मैग्नेटिक मोमेंट की जूल पर टेस्ला, पॉइंट टू बी नोटेड कि मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट जूल पर टेस्ला भी होती है। वैसे हमने आपको ये भी बता रखा है कि m इंटू में 12, m होता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ होता है करंट इंटू डिस्टेंस, एम्पियर मीटर, और ये आपके पास एम्पियर मीटर इंटू में मीटर, तो दैट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट की दो यूनिट होती है, जूल पर टेस्ला भी होती है और एम्पियर मीटर स्क्वायर, पॉइंट टू बी नोटेड, बोथ आर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यहाँ पे जैसे कि टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 हो गया, साइन 91, वी कैन राइट जूल न्यूटन मीटर, जूल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और आपके पास थी फॉर टेस्ला द मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। नाउ हियर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशंस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर, फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम
स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ऑलवेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जब भी पॉसिबल है जब डाइपोल इज प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज जीरो। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एम बी साइन थीटा डी थीटा। यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो m माइनस एम बी कोस थीटा। आई मीन से दैट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है, यदि हम रोटेट नहीं करते तो माइनस एम बी कोस थीटा। Now here when the dipole is placed in the same direction of the magnetic field, तो same direction में मतलब theta is zero minus mb, and now here work done is minimum. I mean say that minimum potential energy। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑलवेज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर, ओके। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ये हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। फॉर ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, मींस दैट वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हाइट पॉसिबल। तो वर्क डन होता है एम बी माइनस एम बी कोस थीटा, ओके। नाउ हियर मैनी डाइपोल दैट शुड बी प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ 180 डिग्री, और कोस ऑफ 180 डिग्री दैट इज -1। अब वर्क डन इज इक्वल टू कोस 180 -1, ये एम बी, एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक आपके पास हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया। ये सेम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ हियर कहता है व्हाट विल द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, सेम। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन जैसे हमने उसमें बताया था आपको, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ टॉर्क एक रेस्टोरिंग टॉर्क का काम करता है माइनस एम बी साइन थीटा। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द रेस्टोरिंग टॉर्क, जो उसको एक्सट्रीम पोजीशन से मिनिमम पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि यहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा दैट इज नियर इक्वल टू थीटा, और ये होगा माइनस एम बी थीटा दैट इज टॉर्क। इक्वेशन फर्स्ट, जब डाइपोल को मैनी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैनी फील्ड में जब हम प्लेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशंस अभी हमने ड्राइव किया है, वी कैन राइट। इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज द इक्वेशन सेकंड। एंड वी कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, आई अल्फा दैट इज इक्वल टू एम बी थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू एम बी बाई आई इनटू में थीटा, अल्फा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। देखिए ट्रांसलेटरी एसएचएम में तो एक्सेलरेशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन here represent the acceleration and displacement, they are directed opposite to each other, but angular motion के अंदर we can prove angular acceleration that is proportional to angular displacement, and negative sign here representing the angular acceleration and angular displacement, they are directed opposite to each other। इसके अंदर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का फार्मूला होता है वो हम पता है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, बट यहाँ इस मोशन में जो होगा आपके पास 2 पाई, आप यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपके पास 2 पाई हो गया, ये थीटा, और यहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी अल्फा की, और दैट इज अल्फा इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव साइन, और अल्फा की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी एम बी बाई आई इंटू में थीटा, यहाँ पे एम बी आई इंटू में थीटा कैंसिल, और ये आपके पास हो गया टी इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई एम बी, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इन एसएचएम। ये आपके पास है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इन एसएचएम, जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है। अब नाउ ये हमारे पास हो गया, इस पे जैसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकती है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम आपके पास दे दिया 1.5 जूल पर टेस्ला, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया 10⁴, ये टेस्ला है। तो व्हाट इज द वर्क डन इज व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड, a dipole is aligned in the same direction, initially dipole same direction में aligns है, तो initially θ1 क्या होगा 0 and it is rotate normal to the field, तो θ2 is equal to 90, तो वर्क डन का फार्मूला क्या बनेगा, वर्क डन is equal to mv, और यहाँ पे sin θ1 माइनस sin θ2 सॉरी cos θ1 माइनस cos θ2, m की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, θ1 and θ2, there will be different cases by which we can determine the work done by the magnetic dipole in uniform magnetic field. उसके बाद आर्टिकल आता है एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में हम एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है बोर मैग्नेटन, यहां पे हम बोर मैग्नेटन निकालते हैं एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में। देखिए हम एटम हम मानते हैं ये कोई एटम है, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास न्यूक्लियस है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है जिसका चार्ज क्यू है, ये है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद वेलोसिटी v, और दिस वन इज द r। When an electron revolves around the positively charged nucleus, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम के अंदर, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया था आपको, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एक इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट। करंट में बताया था मैंने सेकंड यूनिट में कि करंट एक ट्रांसलेटरी मोशन के कारण भी होता है और करंट एक रोटेटरी मोशन के कारण होता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर में, किसी स्ट्रेट पाथ में, किसी वायर में फ्लो करता है, in that conditions we can say the current due to translatory motions, but now here the positively charged particle revolves around a circular path of radius r, and we can say this what type of current, ये आपके पास एक ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन के कारण है, और यहाँ पे जो करंट होगा वो इक्विवेलेंट करंट होगा, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट करंट होगा मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन electron to t for time period of revolutions. Now here E for the magnitude charge on electrons, E है आपके पास, E is what, magnitude charge on each electron, magnitude charge on each electron, और T आपके पास है time period revolution, time period revolutions of electrons. ओके, और टाइम पीरियड ऑफ रिलेशंस को वी कैन राइट 2 pi r by v. नाउ हियर वी कैन राइट इक्विवेलेंट करंट दैट इज ev by 2 pi r, ये आपके पास इक्विवेलेंट करंट है। यानी कि आई मीन से दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी गिवन हो, रेडियस गिवन हो, a charged particle is moving with a velocity of 1 meter per second square with a radii of 1 meter, then you can determine the equivalent current of that charged particles. Now here magnetic moment, now अब magnetic moment क्या होगा, magnetic moment, अब इस चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपके पास कि I into में A, we can write, how we can write the magnetic M into में A, I mean say that आपके पास ये क्या है, what is this, ये आपके पास वो एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक चार्ज M, इसका डिस्टेंस 2L, और यहाँ पे इसका हमने विड्थ ये डी लिया था। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, m into में 2L, एवरी स्टूडेंट नो वेरी वेल, m इज द पोल स्ट्रेंथ होगा I into में D, R into में 2L, और इस ये बार मैग्नेट का एरिया हो गया
This is the length of the bar magnet, this is the width of the bar magnet, and we can say I into में A, यानी कि आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को I into में A you can write, or that in other words we can say magnetic moment. So now here this is the magnetic moment, and this can be written as MIA. A को we can write pi r square. Now when we put the value of I, EV by 2 pi r into pi r square, or that is equal to what, EVR by 2, and that is the most important formula for calculating. कहने का मतलब यदि कोई चार्ज पार्टिकल यदि आपके पास किसी सर्कुलर पाथ का अपना रेडियस है और किसी वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है, then we can easily determine the magnetic moment of the revolving electrons. This is the expressions for magnetic moment of the revolving electron का magnetic moment है. Very simple. करंट निकाला, इक्विवेलेंट करंट, मैग्नेटिक मोमेंट हमने एक्सप्लेन किया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम इस फॉर्म में वी कैन राइट, एंड टाइम पीरियड ऑफ रिलेशंस वी नो वेरी वेल इन द 11th क्लास, एंड इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू EV by 2 pi r, and magnetic moment current into में area I into में this, and we can calculate that is the magnetic moment. Now here by using the Bohr postulates, देखिए आपने बोर पॉस्टुलेट्स पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर केमिस्ट्री में, कि बोर ने अपने पॉस्टुलेट्स में फर्स्ट पॉस्टुलेट अकॉर्डिंग टू बोर एन इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यू नो वेरी वेल. और इसके अंदर आपने सेकंड पॉस्टुलेट के अंदर पढ़ा होगा बोर का सेकंड पॉस्टुलेट. व्हाट इज द बोर सेकंड पॉस्टुलेट? सेकंड पोस्टुलेट में, बोर के सेकंड पोस्टुलेट में, अकॉर्डिंग टू बोर बाय इट्स सेकंड पोस्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ए परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट. कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ए परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट, फॉर दैट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन इज अप्लाइड. For that angular momentum that should be equal to, जो angular momentum होगा integer multiple of h upon 2 pi. That is the second conditions of the Bohr postulates. According to Bohr, an electrons can revolve in a permitted stationary orbit. कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो permitted stationary orbit में revolve कर सकता है. उसके लिए conditions है. For that what conditions? The angular momentum that should be equal to integer multiple of h upon 2 pi. अब एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा? nvr मोमेंटम. अब यदि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा? m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दैट इज nh अपॉन 2 pi, एंड हियर vr इज इक्वल टू व्हाट? nh अपॉन 2 pi. नाउ nh अपॉन 2 pi m, Vr is equal to nh upon 2 pi r. Now put the value of AVR. So now magnetic moment that is equal to E into nh upon 4 pi m, and that is what? The magnetic moment of the revolving electrons. We can say that is the magnetic moment of the revolving electrons. Now for the Bohr magneton, अब मेन हमारा जो पॉइंट है Bohr magneton. What means Bohr magneton? तो Bohr magneton में we can say कि in a Bohr magneton when the magnetic moment is associated with first orbit of revolving electrons. यदि first orbit means n is equal to 1 हो जाए तो आपके पास जो ये magnetic moment है that is known to be Bohr magneton. कि Bohr magneton means the magnetic moment associated with फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट ऑर्बिट, जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो आपका बोर मैग्नेटन बन जाएगा. तो बोर मैग्नेटन दैट मींस द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दैट इज बोर मैग्नेटन. और फॉर ए बोर मैग्नेटन नाउ फॉर बोर मैग्नेटन आपका जो बोर मैग्नेटन मिलेगा, अब बोर मैग्नेटन में आपके पास आ जाएगा n is equal to 1. अब यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट है that is known to be Bohr magneton.
बोहर, अब ये आपके पास बोहर मैग्नेटन, एन की वैल्यू 1 पुट होते ही ये आपके पास बोहर मैग्नेटन बन जाएगा। और यहाँ पे ई की वैल्यू होते हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19, प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 10 की पावर माइनस 24, और दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू 3.14, और m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 31, और दैट इज 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटन। ये हमने आपको बोहर मैग्नेटन बता दिया कि ये आपके पास बोहर मैग्नेटन है। और इसमें आप एटम एज ए मैनी डायपोल में आप ये पढ़ते हैं, और ये आपके पास बोहर मैग्नेटन है। अब हमारे पास इसके बाद आता है मैग्नेटिक जाइरो रेशो। मैग्नेटिक जाइरो रेशो, मैग्नेटिक जाइरो रेशो, जाइरो रेशो। तो मैग्नेटिक जाइरो रेशो एक रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो होता है? मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना? मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना? EVR/2, और एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया? MVR। तो यानी कि ये बन गया VR से VR 1/2 E/m, और E/m को हम ले सकते हैं 1/2 स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। और स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होता है? द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है। उसके बाद हमारे पास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल आते हैं। जैसे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल में हम ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो स्पेशल, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास यूज होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ये स्पेशल टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे हमारे पास यूज होता है मैग्नेटिक इंडक्शंस। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल वो डेवलप कर दे विच इंड्यूसेस क्या? मैग्नेटिज्म्स। यदि कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में यदि प्लेस कर दे तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाए तो मैग्नेटिक इंडक्शंस कहलाता है। और यहाँ पे जो सबसे जो मेन बात है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या बना? टोटल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ऑफ ए गिवन सरफेस में से जितने भी फील्ड लाइंस पास होती है मैग्नेटिक फ्लक्स वो वीकेंड से मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी आपके पास यूनिट होती है वेबर, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके, आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। व्हाई वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एंड द वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो नोन टू बी टेस्ला, इसको टेस्ला भी कह सकते हैं हम। टेस्ला और मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपके पास वेबर यूनिट होती है, और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो नोन टू बी टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके लिए एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ जो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे, विच मैग्नेटाइज द गिवन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसको मैग्नेटाइज कर दे, उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप कर दे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ।
एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई से कहते हैं, इट इज द डिग्री एक्सटेंट, या इट इज द डिग्री टू एक्सटेंट हाउ इजीली ना हाउ ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, हाउ ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कितने यानी कि कोई सब्सटेंस कैसे मैग्नेटाइज हो जाता है, हाउ ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ and intensity of magnetization, that is also be written as magnetic moment, magnetic dipole moment per unit volume, per unit volume। तो magnetic dipole moment को हम लिख सकते हैं, या magnetic moment या magnetic dipole moment को how we can write, हम लिख सकते हैं आपके पास m into में 2l, और वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम आपके पास क्या बन गया, अब यहाँ पे ये वॉल्यूम एरिया इंटू में 2l हो गया, और यानी कि 2l से 2l कैंसिल, तो m by a। I mean say that कि intensity of magnetizations that can be expressed magnetic moment या magnetic dipole per unit volume, and it may be also defined as pole strength per unit area, that is pole strength, that is written as pole strength per unit area। ये pole strength per unit area भी हम we can write। तो pole strength per unit area, pole strength क्या होता है, pole strength होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज एम्पियर मीटर, यहाँ एम्पियर मीटर होगा, पोल स्ट्रेंथ होगा एम्पियर मीटर, और डिवाइडेड बाय एरिया क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर, और मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो यूनिट बन गई ये आपके पास बन गई एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, चाई। अब यहाँ पे जो चाई है, चाई क्या होता है, चाई मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। चाई इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, एंड दे हैव नो यूनिट। और इंटेंसिटी मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, दिस हैज नो यूनिट। तो ये आपके पास सारा मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर हम इसके बारे में कल डिफरेंस ऑन टुमारो वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक मटेरियल डाया पैरा फेरो, उनमें डिफरेंस बताएंगे, उनके अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे, और हिस्टेरियस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।